हेलो गाइस। हाँ, ये है हमारा पॉडकास्ट का 22nd एपिसोड। और ये सेकंड पार्ट है हमारी ओमेगा कंस्पिरेसी की सीरीज़ का, जिसमें हम आई.डी. थॉमस की किताब ओमेगा कंस्पिरेसी को रिव्यू आप नहीं कह सकते, हम काइंड ऑफ डिस्कस करते हैं। उसने किन टॉपिक्स की बात की है, उसमें उसमें उसने यूएफओ इनकाउंटर्स की भी बात की है, और उसको कनेक्ट करता है विद हाउ जेनेसिस 6 जो एक बिब्लिकल टेक्स्ट है वो बात करता है सन्स ऑफ गॉड की। बुक ऑफ जॉब के अंदर भी उसके रेफरेंसेस हैं, बुक ऑफ इनॉक के अंदर भी नेफिलिम के थोड़े वेग इम्प्लिसिट काइंड ऑफ रेफरेंसेस हैं जिनको वो कनेक्ट करता है टू हाउ द नेफिलिम वर हेयर ऑन अर्थ। they kind of they were present at two distinct times and they will come back the third time, जिसको कह रहा है ओमेगा कंस्पिरेसी, एज इन द कंस्पिरेसी के द नेफिलिम विल अराइज अगेन। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सन्स ऑफ गॉड। लास्ट में हमने डिस्कस किया था about ancient civilizations which were very advanced in their time, Babylonians, Egyptians and all of those civilizations, Assyrians, Sumerians। और हम इस एपिसोड में सन्स ऑफ गॉड नेफिलिम के कॉन्सेप्ट को हम डिमिस्टिफाई करेंगे कह लो। तो Naman, do you want me to start with the concept, the term sons of God? Yes, sure, Abdullah. You can start with Sons of God, और इसमें आप पहले स्टार्ट करोगे डेड सी स्क्रॉल से, है ना? नहीं, I'll end with Dead Sea Scrolls क्योंकि that's not the majority. The majority आती है references Genesis और Book of Job से। तो we'll discuss the more important ones पहले। No worries, all good. अच्छा, तो there's this biblical text called Genesis 6 किताब है जिसके अंदर there's this exact verse 1 to 4 जो which talks about uh, a kind of angels that procreated with the woman on earth। उसकी exact verse ये है। It came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, and that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they were born children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown। अब the thing is, अब short disclaimer here कि obviously we know कि God begets not nor is he begotten, obviously कि God cannot have a son जिस तरह हमें बताया जाता है through the popular narrative of Islam। लेकिन जहाँ तक हम जेनेसिस 6 के अंदर सन्स ऑफ गॉड की बात करेंगे ना, जितनी बार भी हम मेंशन करेंगे तो हम कोई ब्लास्फेमी कमिट नहीं कर रहे, ना ही हम कुछ शिर्क कमिट कर रहे हैं। we're just two people trying to have a discussion on the book Omega Conspiracy. We're trying to think about new things and about different ideas without actually sharing those ideas wholeheartedly, क्योंकि I believe ये जो term है sons of God, ये पैदा हुई ड्यू टू मिस ट्रांसलेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अर्लियर ट्रांसलेटर्स, जिनको फिल इन द गैप्स करना था, बस उनको समझ नहीं आई कौन सी टर्म डालें, so they called it sons of God। लेकिन we'll carry that term because that term has been used in the majority of the texts। तो जेनेसिस 6 जहाँ तक बात करती है सन्स ऑफ गॉड की, वो कहती है कि these sons of God they came down on earth, और उनको औरतें नजर आई आदमी की, मतलब the daughters of men, the earthly women। they thought they found them beautiful and they had sexual relations with them, and उनकी उनकी जो औलाद हुई they were the Nephilims। अब यहाँ पे एक बात की गई है एंड पे, they were here, the Nephilim were here at the time of the union of the sons of God and the daughters of men, and they were here after that too। इस पे हम एंड पे आएंगे। बट what are the sons of God? Who were these sons of God? अब इसकी काफ़ी इंटरप्रिटेशंस हैं जो आई.डी. थॉमस अपनी किताब ओमेगा कंस्पिरेसी के अंदर देता है। वो पहले तो ये कहता है कि कुछ स्कॉलर्स ने इसको इनको बोला कि these sons of God were nobles कह लो, मतलब the people of the society, the class of the society which were aristocratic, या फिर मतलब एक उनका पावर होल्ड करते थे वो लोग। they were called the sons of God because of their power and their authority। लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये बेसिकली मेजॉरिटी स्कॉलर्स नहीं मानते इसको। वो कहते हैं भाई दिस इज नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन। सेकंड इंटरप्रिटेशन आती है, वो कहते हैं कि दीज सन्स ऑफ गॉड आर फॉलन एंजल्स। ये जो फॉरेन एंजल्स थे, दे वर enticed by the earthly woman and their beauty, और they began left lusting after them। और काफ़ी काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं ना, बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, दे रिजेक्टेड दिस थ्योरी, क्योंकि दे सेड के मैथ्यू, if I'm quoting this right, मैथ्यू की 22nd चैप्टर की 30th वर्स ये कहती है कि एंजल्स कैन नॉट प्रोक्रिएट।
लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन काइंड ऑफ फॉल्सिफाई हो जाती है जब वो कहते हैं कि अच्छा दे दी सन्स ऑफ गॉड वर फॉलन एंजल्स। अब इस यहाँ पे भी हम इसको सेकंड इंटरप्रिटेशन को छोड़ेंगे, विल गेट बैक टू दिस आफ्टर द थर्ड। The third interpretation that I.D. Thomas offers in his book Conspiracy is that they were the descendants of Seth. The sons of God were the descendants of Seth, and the daughters of men were the female descendants of Cain. Achha, who was Seth and who was Cain? Obviously, we know that Cain was Kabil and Abel was Habil, the sons of Adam, right? Or uh, Habil, Abel ki sacrifice खुदा ने accept की, he was a very righteous man, and Cain, Kabil was jealous of his brother Habil, and Cain killed Abel. Kabil killed Habil, and उसके बाद ये हुआ कि हज़रत आदम के जो दो बेटे थे, एक मर गया, हाबिल मर गया, काबिल जो था उसने कत्ल किया था उसका, तो अनदर चाइल्ड वाज बोर्न टू हज़रत आदम। उन दोनों का भाई हाबिल काबिल का भाई वो सेथ, जिसका कुरान में मेंशन नहीं है, इसलिए वी डू नॉट नो के मुस्लिम स्कॉलर्स उनको क्या बुलाते हैं, सो हम क्रिश्चियन नेम ही उनका अडॉप्ट कर लेते हैं, सेथ, हम उनको सेथ ही बुलाएंगे। तो सेथ वाज द थर्ड सन ऑफ हज़रत आदम जिन पे प्रॉफिटहुड पास हुई, क्योंकि Habil, who was the righteous one, he died. He was killed by his brother Cain. So another child was born, Seth, जिस पे prophethood pass हुई। तो जो third interpretation of the term sons of God, it kind of goes something like this कि जो सेथ था ना, ही वॉज ऑल्सो राइचियस मैन जो प्रॉफिट बना हजरत आदम के बाद। तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं ना, उनको हम बोलते हैं सन्स ऑफ गॉड, बिकॉज केन वॉज एन अनगॉडली मैन, ही वॉज अ विशियस मैन हु किल्ड हिज ओन ब्रदर। हाबिल हु वॉज द प्रीवियसली राइचियस मैन हु वॉज किल्ड, ऑब्वियसली उसकी डिसेंडेंट्स तो नहीं आ सकते, वो तो मारा गया ना। तो सेथ जो था, ही वॉज ऑल्सो अ गॉडली मैन, द थर्ड सन ऑफ हजरत आदम, और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं दे वर गॉडली पीपल, दे वर द राइचियस पीपल, सन्स ऑफ अ राइचियस मैन सेथ। उसको उन उनके डिसेंडेंट्स को, सेथ के डिसेंडेंट्स को भी से दी स्कॉलर्स से कि दे वर द सन्स ऑफ गॉड। Or as for the descendants, as for the daughters of men, they were the descendants of Cain. Like the sons of God are referred to as the descendants of the righteous man Seth, and the daughters of men are referred to as the descendants of the vicious man Seth. Sorry, Cain. तो मतलब सेथ की औलादों ने, उनके मर्दों ने शादियां की केन की, काबिल की बेटियों से। मतलब देयर राइचियसनेस वाज डाइल्यूटेड विद द विशियसनेस ऑफ केन एंड हिज डिसेंडेंट्स। तो इनके अंदर जब बच्चे हुए तो वो मॉन्ग्रेल्स पैदा हुए, वो बड़े विशियस पैदा हुए, उन्होंने बड़ी खून मचाया दुनिया में, और उसके बाद उन पे अजाब आया और खुदा ने उनको वाइप आउट कर दिया। कुछ कुछ बिब्लिकल टेक्स्ट में भी कहते हैं कि गॉड रिग्रेटेड मेकिंग ह्यूमन काइंड, गॉड ने, खुदा ने इंसान, हर मखलूक, परिंदा हो, चार टांगों वाला जानवर हो, कुछ भी हो, सबको ख़त्म कर दिया दुनिया से, एक्सेप्ट मजनू एंड उनकी जो लश्कर के ऊपर जो जो स्पीशीज थी, उनके अलावा सबको हटा दिया। लेकिन आई डिसएग्री विद दैट कि गॉड रिग्रेटेड दैट, लेकिन वो आई थिंक सो दैट्स जस्ट ओवर एम्फसाइजेशन ऑफ हाउ गॉड मस्ट बी फीलिंग व्हेन दैट हैपेंड। खैर, कमिंग बैक टू दिस इंटरप्रिटेशन, हमें पता चलता है कि कुछ कुछ जगहों पे ना इन द ओल्ड टेस्टामेंट सन्स ऑफ गॉड जो है, दिस टर्म वाज यूज्ड नेवर फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इट वाज नेवर यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बट इट वाज यूज्ड फॉर समथिंग spiritual which was below God in power and authority but above humans in power and authority. So they were referred to as angels in other texts. Genesis के अलावा हर जगह जितनी, मतलब मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट इन द ओल्ड टेस्टमेंट, वहाँ पे सन्स ऑफ गॉड को एज एंजल्स रेफर किया गया है। एंड सन्स ऑफ गॉड में आते हैं बहुत एंजल्स, गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स। अब 5 जगह पे ये यूज़ हुआ है इन द हेब्रू बाइबल। जेनेसिस 6 में वर्स 1 to 4 में एक जगह यूज़ किया गया, फिर यूज़ किया गया एक जगह बुक ऑफ डैनियल के अंदर, और 3 जगह यूज़ किया गया वह इन द बुक ऑफ जॉब। अब बुक ऑफ जॉब के अंदर हमें क्लियरली यहाँ से पता चलता है, अभी जो वर्स पे बताने लगा हूँ इसमें पता चलता है कि दीज सन्स ऑफ गॉड वर इंडीड एंजल्स। सो द थर्ड इंटरप्रिटेशन एंड द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन वर रॉन्ग, द सेकंड वन वाज द राइट इंटरप्रिटेशन। वो वर्स ये थी इन द बुक ऑफ जॉब कि व्हेन गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, द सन्स ऑफ गॉड रिजॉइस्ड। the when God created the world, the humankind to thing, obviously when right after God created the world, there were no humans who could have rejoiced at God's creation. So there were only angels who could have rejoiced at God creating the world. So यहाँ से हमें पता चलता है कि this second interpretation is the right one, कि the sons of God were indeed angels.
अब द बुक ऑफ ज्यूड है ना, वो बात करती है कि ये जो एंजल्स थे ना, ये फॉलन एंजल्स का टर्म कहाँ से आता है? ये जो एंजल्स थे हु आर रेफर्ड टू एज सन्स ऑफ गॉड, एज आई जस्ट शोड, they were angels, kind of bad angels आप कह लो, तो who had disobeyed God. और उन एग्जैक्ट वर्डिंग ये है कि they abandoned their dwelling place, their proper dwelling place, मतलब जहाँ उनको अपॉइंट किया गया था खुदा ने कि आपने यहाँ रहना है, यहाँ पे आपकी ड्यूटीज हैं, they abandoned that dwelling place and they descended down on earth. ये बुक ऑफ जूड बताती है. तो दे वर इंडीड फॉलन एंजल्स. अब एक अम्ब्रेला टर्म एंजल्स बना दी गई है जिसमें डीमन से कॉन्सेप्ट डिस्क्लूड कर दिया गया है. शायद इंटरप्रिटेशन में मसला हो, शायद ये एंजल्स नहीं थे, शायद ये डीमंस थे. जिस तरह वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीन की इज़ाज़ील जो थे, काफ़ी लोग कहते हैं कि वो एक एंजल था जो कि जिसने नाफरमानी की. काफ़ी लोग कहते हैं कि वो एक जिन था, एक मतलब एक एक पायस जिन था, लेकिन उसने नाफरमानी की तो वो शैतान हमारा कौन सा बना. तो मसला टर्म के साथ है कि हम उसको एक अम्ब्रेला कैटेगरी में डाल देते हैं कि अच्छा दीज वर द एंजल्स, द फॉलन एंजल्स, लेकिन एंजल्स कैन नॉट डिसोबे गॉड, राइट? So they might have been demons, they might have been some other creation. Anyway, अब सेम चीज जो है ना हमें पता चलती है इन सेकंड पीटर के अंदर, जो विच इज अनदर बिब्लिकल टेक्स्ट, जो हमें बताती है कि गॉड डिड नॉट स्पेयर द एंजल्स एंड ही रेस्क्यूड नोआ. गॉड डिड नॉट स्पेयर द एंजल्स हु सेंड एंड ही रेस्क्यूड हजरत नूह अलैहि सलाम. जो जेनेसिस 6 में भी पता चलता है अबाउट अबाउट द एंजल्स प्रोक्रिएटिंग विद द अर्थली वुमेन. और हमें पता चलता है कि हजरत नूह के ज़माने में जो अजाब आया था, द ग्रेट फ्लड विच वॉश्ड आउट द नेफिलिम एंड द फॉलन एंजल्स. तो दिस इज बेसिकली ये आई.डी.E थॉमस ने अपनी किताब ओमेगा कंस्पिरेसी के अंदर काफ़ी डिफरेंट बिब्लिकल टेक्स्ट को रेफर किया है. एंड ही काइंड ऑफ ड्रॉज कंपैरिजन बिटवीन देम कि हाउ ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड. जिस तरह बुक ऑफ जूड की बात की, बुक ऑफ जोब की बात की, सेकंड पीटर बुक की बात की, जिसमें अजाब की बात करते हैं ऑन द एंजल्स हु सिन्ड, हु डिसोबेड गॉड. अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि बुक ऑफ जूड के अंदर ना दो सिविलाइजेशंस की बात होती है which kind of committed the same kind of sexual immorality, sexual perversion, sexual aberrations आप कह लो. क्योंकि the right sexual normality कह लो आप basically is between a man and a woman, right? तो दो कौमों पे अजाब आया because of sexual perversions. One was the civilization or the era of the Nephilim and the fallen angels, जो जेनेसिस 6 में पता चलता है. और दूसरी थी कौम लूत, राइट? तो बुक ऑफ ज्यूड के अंदर एक ही आयत में इन दोनों के बारे में कंपैरिजन किया गया है. एग्जैक्ट वर्ड्स ये है कि सिंस दे इन द सेम वे एज दीज कमिटेड स्ट्रेंज इमोरलिटीज. अब दे क्या है? दे जो है ना वो रेफर कर रहा है इन दिस वर्स इन द बुक ऑफ ज्यूड, दे रेफर कर रहा है टू द फॉलन एंजल्स, जो सन्स ऑफ गॉड जिनको बोला गया जेनेसिस 6 के अंदर, द सन्स ऑफ गॉड जो फॉलन एंजल्स थे जिन्होंने अर्थली वुमन के साथ सेक्सुअल रिलेशंस किए और बच्चे पैदा हुए और नेफिलिम थे वो. ये सेक्सुअल परवर्जन पहली परवर्जन थी. दूसरी परवर्जन जो दे से रेफर कर रहे हैं, सॉरी दीज से रेफर कर रहे हैं, दीज वर द पीपल, द होमोसेक्सुअल्स इन एट द टाइम ऑफ लूथ इन द सिटीज ऑफ सोडोम एंड गमोरा. ये दो सीरीज ने जो हमें बाइबल बिब्लिकल टेक्स्ट में पता चलता है नाम इन सिटीज का. आई डोंट थिंक सो कुरान के अंदर नाम लिखा है उन सिटीज का जहाँ पे अजाब आया था. आई कैन बी रॉन्ग देयर, बट इन द बिब्लिकल टेक्स्ट द सिटीज आर सोडोम एंड गमोरा, जहाँ पे इन पे अजाब आया फॉर होमोसेक्सुअल रिलेशंस. खैर इसके बाद हम आते हैं नेफिलिम के ऊपर, क्योंकि अभी वी डिकंस्ट्रक्टेड द आइडिया ऑफ द सन्स ऑफ गॉड. Before I go on to Nephilim, या फिर would you want to discuss anything about sons of God, या फिर would you want to carry on about Nephilim? यस, पहले तो बस मैंने ये डिस्कस करना चाह रहा था कि सन्स ऑफ गॉड की जो टर्म है, इट्स वेरी मच डिस्प्यूटेड. कुछ जैसे कि इस बुक में भी हमें मालूम होता है कि ऑथर खुद इस बात को रिकग्नाइज कर रहा है कि देयर कुड बी अ मिसलीडिंग ट्रांसलेशन इन टर्म्स ऑफ दीज बुक्स. ठीक है, इन बुक्स में जो ट्रांसलेशन की थी वर्ड नेफिलिम की, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. और दूसरी बात ये है कि दे कीप ऑन, ये भी हो सकता है कि जिसने भी जो भी बुक्स हैं बाइबल की, मैथ्यूज़ जो है, मैथ्यूज़ की जो बुक है, इसकी भी ट्रांसलेशन में मसला हो सकता है. क्योंकि हमें हमारे तो इस्लाम में ही मालूम होता है ना हमें कि शैतान शयातीन जो हैं वो जिन्नात से बने.
ठीक है। मगर इस्लाम से पहले जिन्नात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दैट इज़ वाई दे केप्ट ऑन मिक्सिंग डीमंस। अब ये इनका क्या मानना है कि एंजल्स, बैड एंजल्स टर्न डीमन, और अच्छे एंजल्स है वो एंजल्स ही रहते हैं। जबकि इस्लाम ने बताया नहीं, जो डीमंस हैं वो जिन होते हैं, बुरे जिन होते हैं, ठीक है, वो डीमंस हो जाते हैं। जबकि आप ये कह लो एंजल्स हैं वो एंजल्स ही रहते हैं। और एंजल्स कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अपने विल की, आप कह लो कि अपनी कोई विल नहीं होती, दे जस्ट हैव टू फॉलो द विल ऑफ द गॉड। दैट इज़ वाई एंजल्स जो हैं दे आर हेवनली बीइंग्स, और नेक 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 आप कह लो मखलूक अल्लाह ताला की। तो अज़ाज़ील की जैसे बात की, अज़ाज़ील कुछ जो वही प्रॉब्लम है कि कुछ सूफिया जो थे उन्होंने वो यही प्रॉब्लम बार-बार की कि ये जो अज़ाज़ील नाम था शैतान का, वो शैतान, वो लोग ये समझते थे कि शैतान जो था वो पहले एक फ़रिश्ता था। जबकि हमें कुरान पाक में साफ़ ये बात बताई गई कि शैतान फ़रिश्ता नहीं था, शैतान वाज़ इंडीड अ जिन। हाँ, नेक जिन था, पाइस जिन था, बहुत ज़्यादा इबादत करता था अल्लाह ताला की, उसको बड़ा फ़ख्र था अपनी इबादत पे। और उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जब अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि इंसानों के आगे सजदा करो, तो उसने सजदा ना करके अल्लाह ताला की नाफरमानी की। तो यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर भी कुछ फैक्शंस हैं मुस्लिम्स के अंदर, जो भी इस बात को डिस्प्यूट करते हैं कि शैतान क्या एक फ़रिश्ता था या फिर शैतान एक जिन था। जबकि एक बात डन है कि शैतान वाज़ इंडीड अ जिन, और शैतान की जो सारे आप कह लो कि उसकी जो पूरी आर्मी है शैतान की, उसके जो भी चेले कह लो, कुछ भी कह लें आप, वो भी जिन ही हैं, वो फ़रिश्ते नहीं हैं। और हमें इस बात का भी कुरान पाक से पहले, जैसा कि अभी आप इस बात को डिस्कस कर रहे थे अब्दुल्ला, कि अ, जब अल्लाह ताला ने मैथ्यूज़ में है कि जब अल्लाह खुदा ने ज़मीन बनाई, तो अ, ये जो सन्स ऑफ गॉड थे इन्होंने खुशी मनाई, ठीक है। हमें इस बात का कुरान पाक से भी अंदेशा मिलता है कि इंसानों से पहले जिन्नात दुनिया पे, और दुनिया पे ज़मीन पे ऑलरेडी बस रहे थे, ठीक है, ऑलरेडी रहते थे दुनिया पे। और इंसानों के आने से पहले भी इनके ऊपर एक आप कह लो अज़ाब आ चुका था शैतानों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ही। तो कुरान पाक ने इस बात को क्लेरिफ़ाई कर दिया कि जिसकी वो बात कर रहे हैं वो एंजल्स नहीं है, वो दरअसल जिन्नात थे। आपको क्या कहना चाहोगे इस वक़्त अब्दुल्ला? यार या यूर वेरी राइट अबाउट दिस, लाइक आई मेंशन एट द स्टार्ट के मसला आता है हमेशा हमेशा ट्रांसलेशन के अंदर। एंड वन 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 थिंग यू मेंशनड हियर वाज कि हमें हमें कुरान के थ्रू पता चलता है कि अच्छा देयर इज सच अ थिंग एज डीमंस, राइट? when these biblical texts were being translated from Greek language or Hebrew, they there wasn't a concept of demons present at that time. तो उन्होंने अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ना उनको एक मिलर कैटेगरी के अंदर, एंजल्स के अंदर डाल दिया कि अच्छा इफ एन एंजल disobeys God he becomes a demon and good angels remain angels, right? जबकि हमें पता चलता है that's not the right thing. And another thing is कि it might be totally dependent on dilution and dispute of the text, क्योंकि हमें जिस तरह आज हमें पता है कि the Bible obviously had been diluted by earlier scholars or priests, जो Trinity का major component है of modern Christianity. तो वी गेट टू नो कि अच्छा उसकी डाइल्यूशन हुई भी है। तो वी आर वेरी अनश्योर एंड वेरी स्केप्टिकल अबाउट anything we read about the Bible. We have to research it in great detail. We read the book, both of us read the book by I.D.E. Thomas on conspiracy. उसको वैलिडेट करने के लिए हमने काफ़ी और आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, रिसर्च पेपर्स पढ़े अबाउट बिब्लिकल टेक्स्ट्स और रिकनसाइलिंग डिफरेंट टेक्स्ट लाइक बुक ऑफ और जेनेसिस हो गया, बुक बिल्कुल, ऑफ जूड हो गया। तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च क्योंकि डाइल्यूशन वाला पॉइंट तो है प्रेजेंट। वो पहली बात ये कि ये जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है या फिर बुक ऑफ मैथ्यू है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू टेस्टामेंट। ये ओल्ड टेस्टामेंट का पार्ट नहीं था। और इसमें ये भी हो सकता है कि ट्रांसलेशन में गलती भी आ चुकी हो। और जहाँ तक इंसानों को और जिन्नात का सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मैरिज का जो की जो बात है, ये पहले होता रहा है दुनिया में। और प्रिमिटिव एजेस में हमें इस बात का हमें इस बात का मालूम होता है कि जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, they were a bit more inclined towards black magic। और ब्लैक मैजिक में जो सबसे बड़ी आप कह लो जो पार्ट होता है ब्लैक मैजिक का, इट इज़ सेलिंग योर सोल।
टू द डीमंस। तो डीमंस को अपनी सोल सेल करने का सबसे बड़ा जो आप कह लो एक प्रोसेस था, वो था बाय मैरिंग डीमंस, ठीक है। अब आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे काम करते हैं कि जो भी जादू वगैरह काला जादू करते हैं, वो भी ऐसे ही वही काम ऐसे ही करते हैं कि वो अक्सर जिन्नात के साथ शादी कर लेते हैं। और इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सख्ती से मना किया कि इंसानों को ये काम नहीं करना चाहिए, और उसकी प्रिकॉशंस भी हैं। जो लोग ऐसे काम करते हैं उनकी ज़्यादा जल्दी डेथ हो जाती है, या फिर ये कि उनकी अंडर अनसर्टन सर्कमस्टांसेस उनकी डेथ हो जाती है जल्दी, यंग एज में ही। और इससे हमें ये मालूम होता है कि शायद उस दौर में जो इंसान थे वो इसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट बेबीलोन, मेसोपोटामिया, और इफ़ यू टॉक अबाउट नेबुकदनेस्सर, इस तरह की जो प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस थी, दे वर हेवीली इन्वॉल्व्ड इन ब्लैक मैजिक। बेबीलोन तो और काफ़ी मशहूर है यार इन इजिप्शियंस भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग ब्लैक मौजूद मैजिक। थे। इजिप्शियंस तो इस हद तक मौजूद थे कि इनके हायरोग्लिफिक से ये मालूम होता है कि दे यूज्ड टू समन सोल्स इन द कोर्ट। अगर किसी बंदे का कत्ल हुआ है तो बकायदा उसकी रूह को कोर्ट में बुला के उससे टेस्टमेंट लेते थे कि तुम्हारा कत्ल कैसे हुआ है। कुछ जगहों पे ये भी, इनकी स्टोरीज में ये भी हमें मिलता है। और ये भी हो सकता है कि जो अपने गॉड्स, जिन गॉड्स के लोग पूछते हैं, वो शायद जिन्नात को पूछते हों। और ज़्यादातर जो आपने देखा होगा, ये जो शक्लें वगैरह हैं जो हमें मिलती हैं, जैसे कि हाफ ह्यूमन हाफ डॉग, ठीक है, हाफ हॉर्स हाफ ह्यूमन, ठीक है, जैसे कि हाफ स्कॉर्पियो हाफ ह्यूमन। इस तरह की जो शेप्स हैं, इस तरह की शेप्स जिन्नात की होती हैं। और इसमें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स, अब्दुल्ला? Yeah, I think we kind of deconstructed the term of sons of God. We could move on to discussing the Nephilim, if that's okay. Should I move on to the Nephilim? अच्छा, तो अगेन जिस तरह सन्स ऑफ गॉड की काफ़ी इंटरप्रिटेशन थी, नेफिलिम की भी काफ़ी इंटरप्रिटेशन है ड्यू टू वन सिंगल वर्स विच इज़ जेनेसिस 6:4। वो वर्स बेसिकली ये कहती है, लाइक आई मेंशन्ड एट द स्टार्ट, इज के द नेफिलिम वर प्रेजेंट एट दिस पॉइंट and afterward. अब ये this point क्या है? This point was the sexual union of the sons of God, as in fallen angels, and the daughters of men. इस सेक्सुअल यूनियन से पहले भी मौजूद थे नेफिलिम, और इसके बाद भी थे। ये है मोस्ट फेमस इंटरप्रिटेशन इसके बारे में। अब इससे मतलब क्या हो सकता है? इससे मतलब ये हो सकता है कि अगर तो दे वर प्रेजेंट बिफोर द सेक्सुअल यूनियन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, दैट इज फॉलन एंजल्स एंड द डिसेंडेंट्स ऑफ डॉटर्स ऑफ मैन, तो हमें पता चलता है कि अच्छा, अगर तो उनसे पहले थे तो ऑब्वियसली वो उनकी प्रोक्रिएशन नहीं हो सकते। द नेफिलिम देन कैन नॉट बी द सन्स ऑफ गॉड, दे कैन नॉट बी द सन्स ऑफ फॉलन एंजल्स। तो ये है आपका मोस्ट फेमस इंटरप्रिटेशन। और जो बात इसके बाद आती है, विच इज़ द लास्ट फुट नोट दैट इज मैंशनड इन द वर्स। बाइबल के अंदर ऑलमोस्ट हर वर्स जो है वो स्टार्ट हो रही है एंड के साथ, एंड दिस एंड दैट। तो जो वर्स 4 है ना इन जेनेसिस 6, वो आपको एंड पे ये बताती है कि द नेफिलिम वर प्रेजेंट एट दिस पॉइंट एंड आफ्टरवर्ड मैन ऑफ ग्रेट रिनाउन। फुल स्टॉप के बाद एंड नहीं आया, सिर्फ आया मैन ऑफ ग्रेट रिनाउन। एंड लाइक दैट could show, according to a few philosophers, कह रहा हूँ, scholars, कि it is kind of acting as a footnote towards acting as a footnote for the last verse। तो जहाँ पहले मेंशन किया गया था कि the Nephilim were present at this point and afterwards men of great renown। अब ये हो सकता है कि जब हज़रत मूसा पे ये आयतें उतरी, और जो जिन लोगों के लिए उतरी ना, जो लोग उस मौजूद थे उस वक्त जब ये आयतें उतरी थी, तो उन दे माइट हैव ऑलरेडी बीन फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेफिलिम, क्योंकि नेफिलिम जिस तरह इस आयत में बताया गया है जेनेसिस 6:4 में, कि दे वर मैन हु वर एंशिएंट हीरोज, मिथिकल हीरोज थे वो, एंशिएंट हीरोज थे, मैन ऑफ ग्रेट रिनाउन थे वो लोग। तो बस यहाँ पे करके छोड़ दी गई ये बात। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फर्दर, सो विच काइंड ऑफ सिग्निफाइज के जिन लोगों के लिए ये वर्सेस उतारे गए, उस ज़माने के लोगों को पहले ही पता था कि नेफिलिम कौन थे, उनके शायद ज़माने में ही हो लोगों, या फिर उनकी तब की स्टोरीज के अंदर उनको बताया जाता हो अबाउट द नेफिलिम। खैर, कुछ
इंटरप्रिटेशंस ये कहती हैं कि नहीं, नेफिलम इंडीड वर द सन्स ऑफ गॉड, दे वर इंडीड द प्रोक्रिएशन ऑफ angels, fallen angels, and their sexual union with the daughters of men. Matlab, when the sons of God descended down on earth, when they abandoned their proper dwelling place and descended down on earth, which is why we call them fallen angels, and when they had sexual relations with the daughters of men, they kind of produced an offspring which were giants, and they were called the Nephilim. का वर्ड कैसे आता है? बुक ऑफ इनॉक है, जो एक और बिब्लिकल टेक्स्ट है जो इन नेफिलम को एक खास तरीके से पेश करती है। वो कहती है कि नेफिलम वर जायंट्स इन द लिटरल सेंस कि दे वर वेरी वेरी टॉल, वेरी वेरी ह्यूमंगस, एंड दे वर द सन्स ऑफ फॉलन एंजल्स। तो जो बुक ऑफ इनॉक है ना, वो प्रॉफिट इनॉक पे उतरी, जो कि जेनेसिस 5 के अंदर मेंशन्ड है और कुछ और वर्सेस में मेंशन्ड है। और ही वाज अ वेरी होली मैन, ही वाज अ वेरी पायस मैन, और उनके बारे में लिखा हुआ है कि ही वॉकड विद गॉड, एंड इनॉक वॉकड विद गॉड, एंड ही वाज नॉट, फॉर गॉड टुक हिम। अब यहाँ पे ये वर्स बड़ी डिस्प्यूटेड है, इवन दो मैं एक टेंजेंट पे चले जाऊंगा। इफ आई गेट ऑन टू टॉकिंग अबाउट दिस, आई वॉन्ट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड्स, लेकिन खैर मेरा बताने का मकसद ये है कि ही वॉज अ वेरी पायस मैन, ही लिव्ड फॉर अबाउट 365 ईयर्स, और उन पे ये किताब उतरी, बुक ऑफ इनॉक, जो कि एक बड़ी एंशियट एंशियट कह रहा हूँ एंशियंट ज्यूइश किताब थी, एक ज्यूइश वर्क था फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC। तो ये किताब जो है, इसके इसके जो पुराने वर्जन्स हैं ना इस किताब के, लाइक जो हमें स्क्रिप्चर्स मिलते हैं जो कि इससे भी पहले डेट करते हैं, वो बात करते हैं वॉचर्स की। अब ये जो वॉचर्स थे, दे वर द पीपल, सॉरी पीपल कह रहा हूँ, दे वर दीज फॉलन एंजल्स जो कि उस ज़माने के अंदर भी प्रेजेंट थे। तो हमें ये जेनेसिस 6 के भी पता चलता है कि ये जो फॉलन एंजल्स थे, दे वर नॉट ओनली प्रेजेंट वंस, दे वर प्रेजेंट थ्रू आउट हिस्ट्री एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जिस तरह I.D.E थॉमस भी अपनी किताब में कहता है कि अच्छा, दे वर प्रेजेंट ट्वाइस एंड दे विल कम फॉर अ थर्ड टाइम व्हिच विल बी देयर रिवाइवल और देयर रिजरेक्शन। तो जो बुक ऑफ इनॉक के पहले वाले वर्जन्स हैं, वो कहते हैं कि आज से कोई 2300 साल पहले, मतलब 300 BC के करीब, ये वॉचर्स मौजूद थे, दीज फॉलन एंजल्स, और दे वर खून बहा रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। खैर, ये जो बुक ऑफ इनॉक है, इसके हमें मिलते हैं फ्रैगमेंट्स, मिलते हैं हमें इसके। एक एक वाक़या था डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से। इट्स लाइक 1947 में एक एक अरब बॉय था, ठीक है, वो अपनी ना बकरियां चरा रहा होता है, और एक्सीडेंटली वो एक केव डिस्कवर करता है, एक केव डिस्कवर करता है नियर द डेड सी। एक एंशिएंट केव डिस्कवर करता है, उसमें उसमें जाता है, और वो एक कलेक्शन देखता है एंशिएंट स्क्रॉल्स की, और वो फिर उसमें से ये जो स्क्रॉल्स थी, इनको इनका नाम पड़ जाता है डेड सी स्क्रॉल्स। ऑब्वियसली डेड सी के नीर एक एंशिएंट केव थी जहाँ पे स्क्रॉल्स पाई गई, तो ऑब्वियसली यू गेट यू अंडरस्टैंड वेयर द नेम कम्स फ्रॉम। तो ये जो डेड सी स्क्रॉल्स थी, इनको हम लोग कुमरान टेक्स्ट भी कहते हैं, और ये जेनेसिस की कुछ वर्सेस हैं, उनकी भी वर्सेस मिलती हैं। बुक ऑफ इनॉक की भी कुछ लॉस्ट टेक्स्ट थे जो इन डेड सी स्क्रॉल्स, इन कुमरान टेक्स्ट के अंदर मिली। और इसके अंदर ये भी बताया गया इन डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर, जो कि अभी 1947 इतना दूर तो नहीं था, लाइक आज से 80 साल पहले की बात है। दी स्क्रॉल्स वर फाउंड एंड दे टॉक्ड अबाउट अगेन द फॉलन एंजल्स। Again these texts found talked about the fallen angels. So book of Enoch जो है ना, it mentioned these fallen angels as well, and how अच्छा, I'd like to briefly touch on the fact कि this book of Enoch के अंदर एक आयत है which says कि and Enoch walked with God एंड देन ही वाज नॉट, फॉर गॉड टुक हिम। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब जब द फॉलन एंजल्स वर प्रेजेंट एट इस टाइम, तो उन पे अजाब भेजा गया और खुदा ने इनॉक को उठा लिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है, विच इज़ द पॉपुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्स। खैर, हम अगर आते हैं नेफिलिम के कॉन्सेप्ट पे, तो ये डेड्स
ये बुक ऑफ इनॉक, जेनेसिस हो गया, ये तो बिब्लिकल टेक्स्ट है ना जिनके अंदर ये मेंशन है इनका। इसके अलावा फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी और ट्रेडिशंस में, सिविलाइजेशंस में हमें मिलता है। जैसे ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर हमारे पास ज़्यूस का कॉन्सेप्ट है, हरकुलस का कॉन्सेप्ट है कि दे, यू नो, ही वाज द मोस्ट पावरफुल एंड ही वाज अ लिटरल डेमीगॉड who was a fallen angel। और हरकुलस की भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। एंशियंट सुमेरियन टेक्स्ट बात करते हैं अबाउट फॉलन एंजल्स। लाइक तो सुमेरियंस का पता नहीं क्या व्हाट्स देयर डील के हर कंस्पिरेसी के अंदर सुमेरियंस आ जाते हैं। लाइक एंशिएंट सिविलाइजेशन की कंस्पिरेसी में आ जाएंगे, दे वर सो एडवांस्ड। बाकी अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी जितनी मैंने पढ़ी है उनमें सुमेरियंस का नाम कहीं ना कहीं तो ज़रूर होता है। इसके अलावा हमें पता चलता है हिंदू महाभारत में से पता चलता है, विच इज़ अ हिंदू टेक्स्ट जो बात करता है फॉलन एंजल्स के बारे में। कोरियन कॉन्सेप्ट है, एक किंग हवाविन था, उसने अपने बच्चों बच्चों को भेजा अर्थ के ऊपर। जो जो किंग हवाविन के बच्चे आए उन्होंने मैरी किया, उन्होंने सेक्सुअल रिलेशंस किए विद अर्थली वुमेन, विद द डॉटर्स ऑफ मैन, और उनसे एक अजीब सी मखलूक पैदा हुई। ये कोरियन कॉन्सेप्ट है, अ वेरी एंशिएंट कोरियन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक थी बात अबाउट fallen angels and how they're mentioned in different texts of different civilizations। और उनकी उनकी जो प्रोक्रिएशन थी विद अर्थली वुमेन, उनको हम बोलते हैं नेफिलिम। वलीद, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन टू एनीथिंग अबाउट द नेफिलिम? ना आप, ना इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू, बट एक बात इसमें ये भी ऐड करना चाहेंगे यार कि देयर इज अ स्ट्रेंज, यू कैन से, इंसानों की हमेशा से एक अजीब सी फैंटेसी रही है इन टर्म्स ऑफ जाइंट्स, जो कि हम एक दफ़ा से अब्दुल्ला का अभी याद करो तो हम ऑफ स्क्रीन भी यही बात कर रहे थे कि जाइंट्स हमें हर जगह मिलते हैं, बिग चाहे वो फूड की कॉन्स्पिरेसी जो है। बिग फुट भी आप कह सकते हो, यटी कह लो, और इसके अलावा अ, इनके अलावा भी कह लो कि आप पिछले रिलीजन्स देख लो, ग्रीक मैथोलॉजी में देख लो, आपको जायंट्स मिलेंगे। आप एंशियंट इजिप्शियन मैथोलॉजी देख लो, उसमें आपको जायंट्स मिलेंगे। आप यहाँ तक कि रैग्नारॉक की बात कर लो, या फिर आप वाइकिंग्स की बात कर लो, वहाँ भी आपको मिलेंगे मिस्टिकल बींग्स मिलेंगे जायंट्स जैसे। तो जायंट्स को लेके बहुत अजीब है, जैसे कि रेड, आप अगर आप, मैं कह अभी आपने बात की थी वो जो रेड इंडियंस थे, सुमेरी रेड इंडियंस से अनुनाकी के नाम से हम लास्ट टाइम जब एलियंस की या बात करें, तो उसमें भी उसमें भी जिक्र आता है जायंट्स दे का। वर फॉलन एंजल्स। हाँ, जो कि उनको, उनके ऊपर आप कह लो कि बार बार उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको मतलब कि उनको गुलाम बनाया हुआ था उन्होंने, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। फिर दो भाई थे जिन्होंने इनको आज़ाद करवाया उनसे। तो इट इज़ अ वेरी बेसिक फेस। ये कॉन्सेप्ट था कि अनु जो था ना, अनु वाज अ फॉलन एंजल, और उसकी औलादें जो जिनको हम जायंट्स बोलते हैं वो अनुनाकी थे। दे वर द चिल्ड्रन हु वर ऑफ द सन्स ऑफ गॉड ऑफ द फॉलन एंजल्स। बिल्कुल। तो देयर इज़ अ स्ट्रेंज फ़ैसिनेशन, तो मेरे ख़्याल में ये जो फ़ैसिनेशन जो है वो स्टोरीज़ से आती है, और स्टोरीज़ जो हैं दे कैन कम फ्रॉम इंसिडेंट्स, या फिर ट्रू ट्रू आप कह लो ट्रू स्टोरीज़, या फिर ट्रू जो इंसान के आप कह लो कि अपने एक्सपीरियंस होते हैं उससे स्टोरीज़ बनती हैं। तो अब्दुल्ला, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग ओवर हियर? डू यू थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ जायंट्स? यार आई थिंक सो कि किसी भी फेबल या स्टोरी या कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो, कुछ भी हो जाए ना, इट हैज़ टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज़ टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट जिसको वो आगे लेके जाए। तो कोई ना कोई फैक्चुअल इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा। जिस तरह हमें पता चलता है स्टोरी ऑफ गिलगमेश अगर आपने पढ़ी हो, तो इट्स हुँ, अबाउट अबाउट मैन हु डिफीट्स डेथ, जो एक एक पोशन पीता है। डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट, इस्लाम से हमें पता चलता है कि देयर वाज, मेरे दिमाग से निकल रहा है उनका नाम यार, प्रॉफिट नहीं थे वो, ही वाज, हिज नेम वाज जकरिया मेरे ख्याल से। हज़रत ख़िज़र की बात तो नहीं कर रहे आप? खिज़र, हज़रत जो अभी भी खिज़र, या तो जो अभी भी ज़िंदा उनकी, है, हाँ, उनकी तो फ़ेबल हमें कहते हैं। मिलती है, स्टोरी ऑफ गिलगमेश। काफ़ी सुमेरियंस फिर यहाँ पे आ जाते हैं। सुमेरियंस ने बात की ये स्टोरी ऑफ गिलगमेश के बारे में, बाइबल तो बात करता ही करता है। तो डिफरेंट सिविलाइजेशंस एट डिफरेंट पीरियड्स, आज से 4000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, उन सब ने इसकी बात की है। स्टोरीज हैव सम काइंड ऑफ फैक्चुअल इंसिडेंट एज देयर स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट। So yeah, sure, Abdullah, you can carry on if you want. अच्छा, तो नाउ दैट वीव कवर्ड द सन्स ऑफ गॉड वाला पार्ट, we've deconstructed how they are most likely to be fallen angels, or when they procreated with the earthly woman, their offspring were giants, then they were called the Nephilim.
अब ये जो पॉइंट है ना इन द बुक ओमेगा कंस्पिरेसी बाय आई.डी. थॉमस, यहाँ पे वो सारा कुछ जो उसने बोला होता है वो कंपाइल करता है उसको। अभी जिस जिस फ्लो में हमने डिस्कस किया है, शायद वो थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो देन हाउ आई.डी. थॉमस ऑर्गेनाइज्ड इट, क्योंकि इफ़ यू रीड द बुक यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को रखता है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक, लाइक समवेयर अराउंड पेज 140th, ही काइंड ऑफ कंपाइल्स ऑल ऑफ देम। तो अब तक उसने बात कर चुका है वो एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, वो बात कर चुका है यूएफओ इंसिडेंट्स की, वो बात कुछ कर चुका है सन्स ऑफ गॉड की और उसकी डिफरेंट बिब्लिकल टेक्स्ट में जहाँ जहाँ रेफरेंसेस है, बुक ऑफ जॉब में, बुक ऑफ जूड में, जेनेसिस में, मैथ्यूज में, वहाँ पे उनको डिस्कस कर चुका है। और वो नेफिलिम के बारे में बात कुछ कर चुका है कि दे, इवन दो सम पीपल से हज़रत मूसा को के पे ऊपर जब ये आयतें उतारी गई तो उनके उस ज़माने के लोगों को पता था कि नेफिलिम कौन थे, इसलिए उनकी ज़्यादा बात नहीं की गई। और जो वर्स है कि दे वर प्रेजेंट एट दिस पॉइंट रेफरिंग टू द सेक्सुअल यूनियन बिटवीन द डॉटर्स ऑफ मैन एंड द फॉलन एंजल्स, दे वर प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर दैट। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक द नेफिलिम were not the procreation of fallen angels. लेकिन other interpretation which I.D.E. Thomas presents is कि they were the fallen angel, the sons of the fallen angels. खैर यहाँ पे अब वी लीव इट ओपन कि वट एवर यू माइट वांट टू कंसीव, अगर आप इस पर फर्दर रिसर्च करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत इनकन्क्लूसिव चीज़ है। फॉलन एंजल्स की टर्म भी अभी तक कंप्लीटली डीमिस्टिफाई नहीं हुई, नेफिलिम तो फिर भी बहुत एक ग्रे एरिया के अंदर है। खैर आई.डी. थॉमस फिर इसको कनेक्ट करता है विद एन इंसिडेंट वो जो उसने मेंशन किया था टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द बुक। स्टर्नो का जो वाकया था, सॉरी, अच्छा, स्टर्नो का जो वाकया था इटली के अंदर, जो नेपल्स के साथ ये एक इलाका है स्टर्नो, 1977 का वाकया था जो हमने डिस्कस किया था लास्ट पॉडकास्ट के अंदर के। एक स्पेसशिप देखी कुछ लोगों ने, 7 लोगों ने, और उन्होंने फिर क्या कहते हैं, उसके साथ एक जायंट खड़ा हुआ था, दे सॉ द जायंट समन्ड देम, फिर वो जायंट डिसअपीयर हो गया with a very aggressive and bright light, और they were kind of, ये काफ़ी फेमस इंसिडेंट है स्टर्नो का। तो some people said at that time कि वो बस एक यूएफओ था जिसकी अजीब सी एक फिजिकल उसकी फीचर्स थे। बट I.D. Thomas relates that with the Nephilim. He says कि the Nephilim have been present here on earth twice at distinct periods of time. पहली बार they were washed out, sorry, पहली और दूसरी बार, पहली या फिर दूसरी बार they were washed out by the flood, by the great flood जो नूह के ज़माने में आया। और either of the two है, they were washed out by the great flood, and the second one out of these two would be another instance जिसके बारे में इतनी ना ही रेफरेंसेस मिलती हैं इन द एब्राहमिक रिलीजन्स के टेक्स्ट में, ना ही इतनी रिसर्च इनके ऊपर हुई हुई है। Nevertheless, we know that they were present in history at two distinct points, and they have been present according to I.D. Thomas, and today even they are present. लेकिन they are some kind of paraphysical beings जिनके बारे में ना, जिनको हम देखते तो हैं only when they materialize themselves to us। जिस तरह we talked about in the last episode कि UFOs are paraphysical beings who have this capability inside them कि वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं with whatever टेक्नोलॉजी जिसका हमें आज पता ही नहीं है। जिस तरह जो एग्जांपल मैंने दी थी, आज से 100 साल पहले कोई भी इंसान नहीं सोच सकता था कि you're in Australia, I'm in Pakistan, and we could be talking to each other or seeing each other through a screen। Nobody could have thought of that। तो आज हम जिस तरह सोच नहीं सकते being of a being which is paraphysical in its truest essence, के a being which can materialize itself when it wants, and it can dematerialize itself also when it wants। तो आई.डी. थॉमस कहता है कि जिस तरह वाकयात हमें यूएफओस के मिलते हैं कि दे पीपल सॉ स्पेसशिप स्पेसक्राफ्ट्स जो कि ट्रांसपेरेंट थी, राइट। और उनको अगर जो encounters of the third kind and close encounters of the third kind which involve a direct confrontation with a you know extraterrestrial species or extraterrestrial being, तो उसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा the being that we saw was a paraphysical being, as in वो आउट ऑफ थिन एयर अपेयर हो गई और वो इनटू थिन एयर डिसअपेयर हो गई। तो आई.डी. थॉमस ये कहता है कि जो नेफिलिम थे ये भी कुछ इसी तरह की पैराफिजिकल बींग्स थी जो 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 अभी भी हैं मौजूद दुनिया में, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि दे हैव नॉट येट मटेरियलाइज्ड देमसेल्व्स टू अस।
और दे वर प्रेजेंट एट टू डिस्टिंक्ट टाइम्स थ्रू आउट हिस्ट्री, और दे कम अगेन, और ये जो कम अगेन वाला पार्ट है ना कि दे कम अगेन फॉर द थर्ड टाइम, ये है ओमेगा कंस्पिरेसी। ये किताब का नाम ओमेगा कंस्पिरेसी क्यों है? क्योंकि ये कंस्पिरेसी है जो आईडी थॉमस पेश करता है कि द नेफिलिम आर अलाइव and they'll most likely come again, they'll resurface for the third time, and this is the Omega conspiracy, और यहाँ पे किताब कंक्लूड होती है। अब्दुल्ला इंडीड यार, एक छोटी सी किताब थी मगर इट वाज अ वेरी कंसाइज बुक। और 160 काफ़ी पेजेस में उसने माइंड फक कर दिया यार आईडी थॉमस ने। हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त बुक बनाई, ज़बरदस्त बुक लिखी थी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हर पेज पे इतनी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप हर पेज को समझने, क्योंकि हमने तो काफ़ी ज़्यादा एक टॉपिक्स को पहले एक्सप्लोर किया हुआ है, मगर अगर किसी बंदे ने ना एक्सप्लोर किया और जिसमें टर्म्स हैं, उसको तो एक पेज पढ़ के फिर उसको टर्म को गूगल करे, फिर सर्च करे, फिर समझे, फिर तो इस तरह कर करके बुक बड़ी कंसाइज बुक लिखी थी और बहुत जो उसने आइडिया प्रेजेंट किया है, इट मेक्स काइंड ऑफ सेंस मेरे ख्याल में। बिकॉज वो जो हमने क्योंकि जिस तरह की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो लोगों के जो यूएफओ इनकाउंटर्स हैं थर्ड काइंड के या फिफ्थ काइंड के, जितने भी काइंड के, फर्स्ट सेकंड, उनमें ज़्यादातर सिमिलरिटीज वो यही मिलती हैं कि वेन एवर दे सी अ यूएफओ दे सी लाइक अ ट्रांसलूसेंट फिगर, या फिर वेन एवर दे सी एन एलियन और समथिंग, उनको एक ट्रांसलूसेंट सी इमेज नज़र आती है उस चीज़ की। और अक्सर जो स्पेसशिप है वो उनके सामने हवा इन दे इट जस्ट डिसअपीयर्स इनटू द थिन एयर। Maybe these creatures are in living in another dimension, और कभी कभार वो हमारे डायमेंशन में आ सकते हैं। आ, और क्योंकि हम वी आर 3D बींग्स, हम उनकी डिमेंशन को परसीव ही नहीं कर सकते। इसमें अगर हम डायमेंशंस को डिस्कस करने जाएं तो डायमेंशंस को डिस्कस करने बैठे तो डायमेंशंस आर स्टिल अ थ्योरी, जो कि एक आइंस्टाइन की थ्योरी थी और अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसको बिलीव करते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको बिलीव नहीं करते। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि देयर आर, आई थिंक सो, 11 डायमेंशंस ऑफ द लॉ, एम आई राइट, और सम 9 सम डायमेंशन, से कि 11 है, लेकिन मोस्ट जो है पॉपुलर नैरेटिव वो है कि 10 है, 10 है, 10 डायमेंशंस हैं। अकॉर्डिंग टू द सुपर स्ट्रिंग थियरी। हम उसको पे भी बना सकते हैं पॉडकास्ट अबाउट द सुपर स्ट्रिंग या थियरी और डायमेंशंस, और वो जो वाक़ये थे असहाबुल कहफ का वाक़या था, द पीपल जो केव में रहे, और उसके अलावा मिराज का वाक़या जो है डायमेंशंस का, हमें कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा डिकॉन्स्ट्रक्ट उसको एक साइंटिफिक नैरेटिव के थ्रू। डायमेंशंस का भी, और वहाँ तो मेरे हाल में आप ये कह लो कि एक आपको वो जो आइंस्टाइन का जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि स्पीड whenever पे he जब एक whenever मैच जाता है तो whenever yes, whenever a mass travels with the speed of light, it turns into energy। एनर्जी। और उसके अलावा मतलब फिर ये है कि उसके लिए टाइम, उसके लिए टाइम का जो परसेप्शन है वो ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ वाई हमें ये मिलता है कि जब नबी करीम बुराक के ऊपर बैठ के सातों आसमानों पे गए थे तो हमें नहीं पता कि नबी करीम कितने अरसे के लिए गए थे। कुछ लोग कहते हैं 2 साल के लिए गए थे, कुछ लोग कहते हैं 3 साल के लिए गए थे, मगर वो बात जो है वो नबी करीम ही जानते हैं और उनकी ज़ात ही जानती है कि वो कितने अरसे के लिए उन आसमानों पे रह गए और कितने अरसे के लिए वहाँ रहे। मगर एक बात तो डर है कि जब वो वापस वहाँ से आए तो टाइम जो था वो स्टिल था, और जहाँ जिस जिस मोमेंट से वो गए थे वो उसी मोमेंट में वापस भी आ गए। और जब उनसे लोगों ने पूछा, कहते हैं कुछ जो यहूदी थे जो ट्रैवल करते रहते थे, उसके आप कह लो जेरूसलम, उन्होंने उसके बारे में सवालात पूछे तो नबी करीम ने सारी वही बातें बताई जो कि सिर्फ वहाँ जाने वाले को ही पता होती हैं, जिससे काफ़ी लोग हैरान हो गए थे कि इन्होंने एक रात के अंदर इतना बड़ा सफ़र कैसे किया। मगर आज अगर हम फिज़िक्स देखें तो हमें थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलती है कि शायद इट माइट बी पॉसिबल कि वो स्पीड ऑफ लाइट जो उनका बुराक था, जो घोड़ा या फिर जिस पे भी वो बैठ के जितनी सवारी थी, इट वॉज माइट बी ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। और यस, दीज थिंग्स डू स्टिल विल स्टिल रिमेन मिस्ट्रीज, और अभी भी मिस्ट्रीज ही हैं। आई थिंक सो दे विल रिमेन मिस्ट्रीज फॉर एटर्निटी। बट आई थिंक सो इंसान को चाहिए कि दे शुड एवरीवन शुड रीड बुक्स। अब्दुल्ला, क्या ख्याल है? बुक रीडिंग से ही आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कन्वेंशनल मीडिया पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन कम ही मिलेगी। यार बुक्स के बारे में एक और बात है ना, यार देखो कि एवरीवन इज ईगोइस्टिक, राइट? हर बंदे में एक ईगो होती है जो या तो वो मार देता है थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, या फिर होती है यार इंसान में।
तो जब आप फॉर एग्जांपल हम दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम दोनों में से कोई ईगोइस्टिक बंदा है, जो कि आई थिंक सो नहीं है। अगर होता हम्म, भी एक ईगोइस्टिक बंदा, तो अगर तुम मेरा बात को रिफ्यूट करते हो ना, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है उसको कबूल करना जब मैं तुम्हारे से फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरी तो फिर ईगो हर्ट होगी अगर मैं फेस टू फेस एडमिट कर लूँ कि मैं गलत था और तुम सही थे। ये जब किताब में एक ऑथर आपसे वन वे कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है ना, तो आपकी ईगो का सवाल नहीं होता। आप अगर एक चीज़ किताब में पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन के बारे में, आप समझते थे एवोल्यूशन नहीं हुई, लेकिन आप सेपियंस पढ़ लो, जो बड़ी बेसिक किताब है युवल नोआ हरारी की एवोल्यूशन के बारे में, मतलब बहुत बेसिक एवोल्यूशन के बारे में किताब है। वो आप पढ़ लोगे, आप कहोगे अच्छा दिस मेक्स सेंस। अगर कोई आपको फेस टू फेस वो बात करता है एवोल्यूशन के बारे में, आप ईगोइस्टिक बन जाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मैं बात नहीं मान रहा तुम्हारी। तो बुक्स हैव दैट वे ऑफ कन्विंसिंग यू। तो इट हम्म। काइंड ऑफ शोज यू द अदर नैरेटिव, ताकि आपका दिमाग खुले, और जब आपका दिमाग खुलता है यू ऑन द राइट इंटेलेक्चुअल जर्नी। बिल्कुल सही बात की दुल्ला। और ऐसे ही है, वी स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट। और होपफुली हमारी पॉडकास्ट है, कोई भी लोग मतलब whoever is watching our podcast they learn something as well. Abdullah, do you have any message for anyone who is watching our podcast? अगेन एक और डिस्क्लेमर दे दूंगा दोबारा से कि हम कोई यहाँ पे वी नॉट स्कॉलर्स, और ना ही हम कुछ सन्स ऑफ गॉड का टर्म यूज़ करके हम कुछ शिरक कर रहे हैं। इट्स लाइक कि हमने बिल्कुल। एक चीज़ पढ़ी जो हमें फैसिनेटिंग लगी, एक कॉन्सेप्ट जाइंट्स का, जो कि थ्रू आउट हिस्ट्री काफ़ी मेंशन हुआ गया। इसके अलावा वन मोर थिंग दैट केम टू माइंड टू मी, आई.डी. थॉमस ने लास्ट पार्ट में ना, लाइक आई थिंक सो इन द लास्ट 6 to 7 पेजेस वो मेंशन करता है, ये जब कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी ना, उससे पहले जो तबाहखानी मचेगी, वो मचेगी नेफिलम की आने की वजह से। और नेफिलम जब आएंगे, तो वो अपने ह्यूमन एजेंट्स के साथ आएंगे, और उनका जो टॉप ह्यूमन एजेंट होगा वो होगा एंटी क्राइस्ट, विच हु विल बी अ ह्यूमन, लेकिन ही विल बी द एजेंट ऑफ द नेफिलम। और वो उनकी होगी थर्ड कमिंग। ये मेरे दिमाग से बात निकल गई थी, आई जस्ट थॉट आई शुड ऐड इट बिफोर एंडिंग। हम्म। But I won't agree on this मेरे ख्याल में अब्दुल्ला, because एंटी क्राइस्ट का जो रोल होगा, he won't be an agent to someone. उसका रोल जो होगा, इट विल बी मच सेंट्रलाइज्ड अराउंड हिम बेसिकली। उसका जो रोल होगा उसके इर्द गिर्द रोटेट करेगा, और एंटी क्राइस्ट खुद एक बहुत बड़ा फितना होगा। उसके बारे में भी हम वी कैन मेक अ डिफरेंट पॉडकास्ट या अबाउट द वी कैन। कंसेप्ट ऑफ एंटी क्राइस्ट इन इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स। आपको पता होगा कि हिंदुज़म के अंदर भी एक एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी के अंदर तो है ही, क्योंकि इब्राहिमिक रिलीजन है, इस्लाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका है। और यस वी कैन, इट वुड बी अ वेरी रियली गुड पॉडकास्ट। मगर अब्दुल्ला, नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारी कौन सी होगी? सिम्पोजियम होगी। या इट्स इम्पॉसिबल, माय फेवरेट। सिम्पोजियम, नो वरीज। और किसी ने कुछ भी कमेंट करना है तो दे कैन लेट अस नो, दे कैन कमेंट बिलो। और हमें कोई भी सजेशन देनी हो, और इफ यू गाइस वांट अस टू एक्सप्लोर एनी अदर टॉपिक, प्लीज डू लेट अस नो। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।